हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सॉलिड स्टेट फिजिक्स ट्यूटोरियल 6. So let's start with question number 1, part A. Consider a piece of metal of volume 1 meter cube at initial temperature 0 Kelvin. The lattice constant at the Fermi energy of the metal are 0.5 nanometer and 2 electron volt. Fermi energy and lattice constant. Starting with the Max Born-Karman periodic condition, justify the proper numerical calculation that the Fermi sphere may be considered as a continuous sphere in K space. Okay, so according to Born-Karman condition, the allowed K values are K is equals to 2 pi by L into N. And since the volume is 1 meter cube, so length of the cube will be 1 meter. Spacing delta K is given by 2 pi by delta L. Length is 1 meter, so spacing will be equal to 2 pi and it will be in meter. So 2 multiplied by 3.14, that is your spacing is 6.28 meter inverse. Now let's calculate the Fermi wave vector kf. Fermi wave vector kf आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो? फर्मी एनर्जी से. फर्मी एनर्जी आपके पास कितनी होती है? EF इज इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर kf स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. सो यहाँ से फर्मी वेव वेक्टर कितना आएगा? 2m इंटू फर्मी एनर्जी डिवाइड बाई h क्रॉस स्क्वायर एंड अंडर रूट. तो आपके पास मास, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. एच क्रॉस रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.05 इंटू 10⁻34 एंड फर्मी एनर्जी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10⁻19. सो आपके पास जब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे एंड उसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास फर्मी वेव वेक्टर कितना आएगा? 7.3 into 10⁹ meter inverse. Now let's calculate this ratio, that is spacing divided by Fermi wave vector. So when you calculate this ratio, that is 6.28 divided by 7.3 into 10⁹. So this factor will be roughly of the order of 10⁻⁹. So that means K spacing is very small as compared to Fermi wave vector. Thus it shows that Fermi sphere is a continuous sphere. Fine. Now let's come to part B of question number 1. The metal has a monoatomic simple cubic lattice structure. Suppose the temperature is increased to final temperature is greater than 0 Kelvin such that the Fermi sphere is now enlarged to a constant energy E sphere which barely touches the surface of first brilliant zone. While the center of sphere coincides with the center of brilliant zone, find the energy gained. You have to calculate the energy gain, that is E minus EF in electron volt by the conduction electron in this process, and also estimate the value of final temperature. So structure is simple cubic. So for simple cubic structure, the first brilliant zone boundary आपके पास कहाँ पर होती है? At k is equals to pi by a. So अगर आप a की वैल्यू पुट करोगे, that is 6 into 10⁻10, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप फर्मी वेव वेक्टर के एफ निकाल पाओगे. सो के विल बी इक्वल टू पाई 3.14 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻10. तो आपके पास ये वैल्यू आएगी. नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. के पाई बाय ए है तो एच क्रॉस की वैल्यू रख दी डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. पाई इज 3.14. के बाय ए मीन्स पाई बाय ए, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 6.28 इंटू 10⁹ एंड इसका स्क्वायर. तो यहां से आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइन. नाउ लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. सो एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E minus EF. Energy of electron is 1.5 electron volt minus Fermi energy is 2 electron volt. So 1.5 minus 2 is 0.5 electron volt. So this implies that there is no additional energy is required. Okay. So this was question number 1. Now let's move on to question number 2. Consider a two-dimensional infinite lattice as shown in the adjacent diagram with the central plus ion as the ith ion. इस central ion को हमने ith ion मान लिया. Each ion carries a magnitude of 1 electronic charge, plus sign, +1 charge, minus sign, -1 charge. Find out the Madelung constant for the ith ion
assuming the interionic separation vanishes outside the boundary of the dotted square. इस डॉटेड बाउंड्री के बाहर आपकी जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है वो वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी आयंस है आपके पास, उनके कारण मेडलिंग कांस्टेंट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। आपको कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, √2 विच इज 1.414, √3 1.73। सो मेडलिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय समेशन ओवर jth आयन प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय Rij डिवाइड बाय a, जहाँ पे a क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट, Rij होता है द पोजीशन बिटवीन टू आयंस, ठीक है। एंड प्लस एंड माइनस साइन कब लेंगे हम, फॉर सेम चार्ज, फॉर एग्जांपल यू आर कैलकुलेटिंग बिटवीन प्लस एंड प्लस, सो यू विल टेक प्लस साइन, एंड फॉर अपोजिट चार्ज, फॉर एग्जांपल यू आर कैलकुलेटिंग फॉर प्लस एंड माइनस, you will take minus sign. So now let's take all the nearest neighbors. So जो nearest neighbors a distance पर होंगे इस प्लस आई चार्ज से, वो कितने होंगे, 4, ठीक है। एंड उनका चार्ज कितना होगा, माइनस। फॉर एग्जांपल प्लस आई से एक माइनस साइन ये है, एक माइनस साइन ये है, थर्ड, फोर्थ। सो दीज 4 नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ a. सो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेडलिंग कांस्टेंट के अंदर, सो दीज आर नेगेटिव चार्ज आयंस, सो विल टेक माइनस। अब 4 के कारण लिखना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 डिवाइड बाय Rij मीन्स डिस्टेंस, इंटरआयनिक डिस्टेंस कितना है a, सो a डिवाइड बाय a, सो a विल कैंसल, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज 4 आयंस विल बी -4 इन द मेडलिंग कांस्टेंट। सिमिलरली हम बाकी नियरेस्ट नेबर्स के लिए निकालते हैं, जो नियरेस्ट नेबर्स √2a डिस्टेंस पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस एंड प्लस, ये √2a डिस्टेंस पर होगा इससे, ये √2a डिस्टेंस पर होगा, ये √2a डिस्टेंस पर होगा, ये √2a डिस्टेंस पर होगा। सो 4 आयंस होंगे आपके पास जो कि √2a डिस्टेंस पर होंगे, एंड इनका चार्ज पॉजिटिव है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4 टाइम्स 4 आयन के कारण 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, आपको लिखना Rij मीन्स इंटरआयनिक डिस्टेंस, सो √2a डिवाइड बाय a विल कैंसल, तो 4 बाय √2 डेट इज 1.414, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.84। सिमिलरली आप नेक्स्ट आयंस के लिए निकालोगे जो कि 2a डिस्टेंस पर है, वो भी 4 होंगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 4 इंटू 1/2 प्लस 2 आएगा। सिमिलरली जो उसके नेक्स्ट होंगे डेट विल बी √5, एंड वो नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे, सो -8 इंटू 1/√5। ऐसे ही सबका आपको कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है, √2a का निकालोगे आप, तो ये नाउ द जो इस बाउंड्री के अंदर जितने भी आपके पास चार्जेस होंगे सबका आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया मेडलिंग कांस्टेंट के अंदर। अब जो नेट मेडलिंग कांस्टेंट होगा मींस टोटल, दैट विल बी समेशन ऑफ दीज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो जितना भी आपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकाला है इन सबका समेशन होगा, ठीक है। सो टोटल अल्फा मेडलिंग कांस्टेंट विल बी -1.32। okay, so this was part A. In part B, if the lattice constant A is 2 angstrom and 4 pi epsilon की वैल्यू दे रखी है 178.6 into 10⁻31, then find out the Madelung energy per ion in electron volt. The symbols have their usual meaning. So Madelung energy per ion, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, U, इसको हम U से डिनोट करते हैं, -α E² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, मेडलिंग कांस्टेंट 1.32, A इज योर लैटिस कांस्टेंट दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास गिवन है, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास मेडलिंग एनर्जी पर आयन कितनी आ जाएगी, -9.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, so this will be your answer. Now let's come to question number 3. The mutual potential energy of two particles depends upon their mutual distance r as follows. Potential energy का रिलेशन म्यूचुअल डिस्टेंस r से कैसा है, a/r² minus b/r when where a is greater than 0 and b is also greater than 0 and a and b both are constant. For what separation r the particles are in static equilibrium? So remember, for static equilibrium, minus del u by del r will be equal to 0, means the slope of this del u by del r, this term will be equal to 0. So you can write del u by del r equal to 0. So इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r एंड उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
वो सेपरेशन आर आ जाएगा जहां पर ये मिनिमम होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। सो 1/r², देखो जब x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास क्या आता है, n x की पावर n-1। सिमिलरली अगर इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिखूं r की पावर -2, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 आगे आएगा, -2, एंड r की पावर -2 -1, सो r -3 हो जाएगा, जिसको कि मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, ठीक है। सो -2 इंटू ए डिवाइड बाई r³ प्लस b डिवाइड बाई r²। -1/r का कितना आएगा, -1/r², सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, b/r²। तो r² यहाँ से, जब आप यहाँ से r² कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब इसको सोल्व करोगे आप r² को उस साइड मल्टीप्लाई कर देना, 0 हो जाएगा। सो r विल बी इक्वल टू 2a/b। So at this separation, the particle will be in static equilibrium. Let's come to part B. A rare gas interatomic potential is given by, आपके पास potential given है a/r⁴ minus b/r⁴, where a and b are materials parameter. What is the spring constant for the displacement of atoms in the harmonic limit if the given equilibrium separation r0 is 1 atomic unit? ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल है इक्विलिब्रियम के लिए, इसको डेल यू बाई डेल आर को हम 0 पुट करेंगे, तो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, -12a/r⁻13, ये कितना हो जाएगा, +6b/r⁻7 इक्वल टू 0। सो यहाँ से जब r की पावर 7 लेके उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा b/6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, यहाँ से हम यूज करेंगे, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। सो d² u डिवाइड बाय dr² एट r इक्वल्स टू r0। सो दिस इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। सो आपको इस टर्म को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। सो ये -13 इसमें मल्टीप्लाई होगा, -12 इंटू -30, तो वो हो जाएगा 156a डिवाइड बाई r⁻14। ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू -7, सो -42b/r⁸। इस फॉर्मूले के अंदर आपको r इक्वल्स टू r0 पुट करना है, विच इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक यूनिट, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपके दोनों कितने हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। सो दिस k विल बी सिंपली इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट k 156a - 42b। ओके, नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन a की वैल्यू, अब यहाँ पे भी r0 या r को आप क्या पुट करोगे, 1, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/2। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे b की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2a। यहाँ पर b था तो वहां पर मैंने 2a पुट कर दिया। सो 156 माइनस 84, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 72 टाइम्स a। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ पेयर ऑफ लिथियम प्लस एंड क्लोरीन minus ion with radii 0.60 angstrom and 1.81 angstrom respectively touch each other. What is the attractive force between them? So आपको इंडिविजुअल आयन का रेडियस दे रखा है, आपको अगर उनके बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस पता लग जाए सो देन यू कैन कैलकुलेट द अट्रैक्टिव फोर्स। सो ये आपको गिवन है, सिंस आयंस टच ईच अदर, तो द टचिंग रेडियस, इसको हम टचिंग रेडियस भी बोलते हैं। So touching radius will be equal to the radius of lithium plus ion plus radius of chlorine minus ion. 0.60 plus 1.81. So 2.41 angstrom. So the attractive force is given by E square, that is K Q1 Q2 divided by R square. So E square will be 1.6 into 10 to the power -19 coulomb square. 4 pi epsilon is 1.1 into 10 to the power -10, and R will be 2.41 into 10 to the power -10 का स्क्वायर। तो अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास कितना आएगा जब यहाँ से सोल्व करोगे, 3.96 into 10 to the power -9 न्यूटन। So this will be your attractive force. The potential energy of the system of two atoms is given by
a upon r power 12 minus b upon r power 6 if the atoms form a stable bond with bond length 3 angstrom and bond energy 1.8 electron volt. The values of a is, आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पोटेंशियल ये गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है एंड पोटेंशियल एनर्जी -1.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएट करोगे, -12a अपॉन r पावर 13 प्लस 6b अपॉन r पावर 7 इक्वल टू 0. इसको 0 के इक्वल पुट करोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. सो एट r इज टू r0, यहाँ से r0 6 की वैल्यू कितनी आएगी 2a अपॉन b. सो यहाँ से आप b कैलकुलेट कर सकते हो 2a अपॉन r0 पावर 6. ठीक है. सो वापिस से इस फॉर्मूले में हम जहां पर b है वहां पे a का एक्सप्रेशन पुट करते हैं. सो a अपॉन r0 पावर 12 माइनस 2a अपॉन r06 ऑलरेडी था इंटू r06. ठीक है. सो दिस विल बिकम 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस a बाय r012. ये आपको गिवन है -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ a डिवाइड बाय r0 का 12, r0 पावर 12. सो आपको जो बॉन्ड लेंथ गिवन है इसकी पावर 12 करनी है आपको. ठीक है. तो आपके पास आएगा 531441. इसको जब आप 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 9.57 इंटू 10⁵. तो दिस विल बी योर a. फाइन. सो गाइज दिस वाज ट्यूटोरियल 6 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर है सब कुछ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.